If you remember that in the previous class we have discussed the economic factors, right, of determinants or the requisites, and they were the natural resources, human resources, capital formation, transport, and communication, right? Today we will discuss the non-economic factors. In non-economic factor, today we will discuss the social factors, political factors, administrative factors. At the end, then an important factor that is technology. We will discuss this one. Acha. Non-economic factors are as such important as economic factor in economic development. We are talking about the economic development, or we have already discussed the economic factors. Similarly, the non-economic factors, they are also important for the economic growth or for the economic development. As said by the NARCs, economic development has much to do with human endowments. Human endowments mean ability, characteristics, social attitudes, political condition, and historical accidents. Number one, social factors. Social attitudes, values, and institutions strongly influence economic development of a country. In a less developed countries, there are social attitude, values, and institutions which are determined to economic progress. Then there are attitudes of the people, their values, their institutions, they determine the economic progress, the economic growth. Religion, for instance, emphasis more on purification of human character. People are less prone to hard work. And if we take the religious institution, in religious institution, the people stress more on the human characters कि भाई आपको इस तरह पाक या साफ या इस तरह रहना चाहिए. दे आर लेस प्रोन टू हार्ड वर्क, यानी वो हार्ड वर्क को अहमियत नहीं देते. People in UDC mean underdeveloped countries, are mostly conservative in their habits. यानी ये लोग कंजर्वेटिव हो अपने सोच में, अपने आदतों में. They feel pride in the native culture and are generally not receptive to methods of production, to the new method of production. यानी they feel pride in their native culture, यानी उनके कल्चर में what is available for the production of goods and services पुराने ज़माने से वो उसी चीज़ को फ़ख्र महसूस करते हैं. They are adapting that for the last so many years and they are not that much responsive to the new technology or to new method of production. The joint family system, although on decline, has also killed the sense of initiative and incentive to work. हमारे गांव में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, शहरों में ये कम होता जा रहा है और देहात में भी, लेकिन फिर भी जो है ना, इट डजंट हेल्प्स to take the initiative in some enterprises or incentive to work. These caste systems function mostly in terms of occupation. यानी आप अगर आप देख ले गांव में आपको दर्जी मिलेंगे, टेलर्स, आपको कारपेंटर, तरखान मिलेंगे, आपको जो है ना वो गोल्ड स्मिथ मिल जाएगा. अदर सेक्टर जो है ना जो भी हैं, लोहार हो गया, वगैरह हो गया, नाई हो गया, ये वगैरह, ये ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो ऑक्यूपेशन में तकसीम हो चुके हैं और उसके मुताबिक दे आर फंक्शनिंग. और these things, these occupational distribution is restricting the occupational and geographical mobility. So these people are involved in such groups. मतलब एक आदमी तरकान है, वो वही काम कर रहा है, नाई है, वही काम कर रहा है. They are not in a position to leave his occupation
and they are not willing to go to other areas, geographical mobility जिसको कहते हैं, for the work. यानी उसी चीज़ पे वो लगे होते हैं, चाहे जो उनका वजन कम हो, जो भी हो, लेकिन उसके साथ वो उनका अटैचमेंट होता है. The occupational classification, which is mostly village centered, is also hampering the economic progress. यानी ये लोग जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि गांव में ही होते हैं, मुख्तलिफ उनमें क्या नाम पेशों में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये इधर उधर मूवमेंट नहीं करते हैं जॉब के सिलसिले में कोई और काम अडॉप्ट करने के लिए. इसलिए इनकी जो इकनॉमिक प्रोग्रेस जो है ना, इनका एज ए इंडिविजुअल भी एज ए कंट्री के लिए भी जो है ना, वो आगे नहीं जाते हैं, डेवलप नहीं हो सकते. The people in LDC, lower developed countries या UDC जो भी लफ्ज़ आप देते हैं, are mostly influenced by traditional customs. They place high values on leisure and participation in festival and ceremonies. यानी ये अपने ट्रेडिशन में, अपने रिवाज जो है, इनका इतना इन्फ्लुएंस होता है, वो हाई वैल्यूज़ देते हैं लेजर को, यानी चलने फिरने को, इधर बैठने को, गपशप लेने को, हुजरे में बैठने के लिए, जो भी लेजर होता है, जो भी लेज टाइप होता है, बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, अपने हुजरे में बैठते हैं, जो और कहीं जाते हैं, उनके लिए वो अहमियत देते हैं. और जो गाँव में जो फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो डेथ से रिलेटेड हो, चाहे ना वो खुशी से रिलेटेड, उन चीज़ों में वो भरपूर हिस्सा लेते हैं. The unnecessary expenditure on marriages, death, बर्थ, लिटिगेशन, इन शादी पे, गम पे, पैदाइश पे और झगड़े पे, लिटिगेशन झगड़े पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हैज़ रिड्यूस्ड डोमेस्टिक सेविंग एंड हैव एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी ये चीज़ें जो हैं, जो भी है, इन चीज़ों पर ये लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. वैसे भी गांव में लोगों का आमदन, हमने जो इससे पहले जो उसमें पढ़ा था कि 2-3 ग्रुप है, याद आपको है कि एक ग्रुप वो है कि वो अपना खाना मुश्किल से पूरा करता है, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेव. ठीक है ना. ये लोग जो है इन्हीं चीज़ों पे जब खर्चा करते हैं, डेथ पे, बर्थ पे, लिटिगेशन पे, अपने डोमेस्टिक सेविंग को, सो इट एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि वो सेविंग नहीं कर सकते हैं, सेविंग नहीं कर सकते, किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. ठीक है ना, नया लैंड खरीद लिया, ना कोई ट्रैक्टर खरीदा, ना कोई थ्रेशर खरीदा, ना और कोई चीज़ जो है ना, वो कारोबार थोड़ा बोड़ा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इन चीज़ों पर खर्चा करते हैं, सेविंग उनके पास नहीं होता है, एंड दिस एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. About half of the population comprises women folk. यानी आपको पता है कि हमारा आबादी का आधा हिस्सा जो है ना, वो कंसिस्ट ऑफ वुमेन है. द सोशल टेबूज and custom prevent them from working with men and also improving their standard of living. यानी हमारा जो रिवाज जो है ना, वो टाबूज, मजहबी ममानियत हो गया या और कोई वो हो गया, रीज़न या कस्टम हो गया, वो हमारे फीमेल फोर्क को, जितने भी हमारे फीमेल हैं, उनको मेन काम, आदमियों के साथ काम करने पे खुश नहीं है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं. सो दे कैन नॉट इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ masses, it is necessary that the social attitudes, values and institutions should be changed or modified. कहते हैं अगर आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मास का अच्छा करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे गांव में, हमारे इलाके में जो भी सोशल इंस्टीट्यूट है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, या इंस्टीट्यूशन है, दे शुड बी चेंज होना चाहिए या उनमें मॉडिफाई करना चाहिए. द चेंज शुड बी इंट्रोड्यूस बाय स्टेज. आराम से उनमें चेंजेस लाना चाहिए. इट शुड बी एवोल्यूशनरी इर्तिकाई जिसको कहते हैं, ठीक है, आराम से, स्लो से, एंड नॉट रेवोल्यूशनरी यानी इनकलाबी, सडनली नहीं होना चाहिए. यानी जो भी आप कहें कोई चेंजेस लाएंगे, वो आराम से लोगों को बताएंगे ये करना है, ये छोड़ना है, ये वो है. तो इट शुड बी एवोल्यूशनरी, इर्तिकाई, आराम से, एंड नॉट रेवोल्यूशनरी, जल्दी एकदम सडन कोई चीज़ होना चाहिए. मेराडाल, he was a famous economist. In his book Asian Drama, he has written the book Asian Drama, मेरे साथ आप पढ़े होंगे.
has educated the adoption of modernization ideas for rapid economic progress of underdeveloped countries. यानी इसने अपनी किताब में लिखा है कि if the underdeveloped countries they want progress, they want quick growth, they want development, जो है ना वो अपना अडॉप्शन करें मॉडर्नाइजेशन आइडिया जो है ना उनको उनका जो आइडिया है जो यानी पुराने उससे रिलेटेड है उनको चेंज करना चाहिए. The United Nations report on economic development emphasizes on change in social attitude, values, institutions for economic growth. Like the Meridal, also the United Nations give importance that the social attitude and the values and the institution of economic development should be changed. Political factor, yani this was the social factors, now we will discuss the political factors. Political factor is another important variable in economic development of the country. If the government of the country is stable, it can play an important role in encouraging economic activity. कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर ये सोशल उसकी तरह इम्पॉर्टेंट है. इफ द गवर्नमेंट आपका स्टेबल है, ठीक है ना, it can play important role in encouraging economic activity. For example, the state can bring changes in the socio-cultural attitude of the people for economic uplift of the masses. Yani it can bring changes, जो भी सोशो कल्चर एटीट्यूड हैं लोगों का उनमें तब्दीली ला सकता है, लेकिन शर्त यह है कि गवर्नमेंट शुड बी स्टेबल. ओवरनाइट चेंज नहीं होता हो किसी और वजह, ठीक है. अगर हुकूमत स्टेबल हो तो इकनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द पीपल के लिए सही काम कर सकता है. इट कैन इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स in the system of the land use and in the field of education. अगर सिमिलरली अगर गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल है और स्ट्रांग है, ये जो है ना लैंड यूज से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या सैनिटेशन से रिलेटेड हो या और भी जो हो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, ये जो है ना इस सिस्टम को चेंज कर सकता है और वो सिस्टम ला सकता है जो जिसमें पब्लिक का जो है ना फ़ायदा हो. It can also initiate economic growth by maintaining peace in the country, by providing public utility services, and by fostering new industries, development of agriculture and banking institutions. Similarly, अगर गवर्नमेंट जो है ना इफ ही इज स्टेबल एंड स्ट्रांग, इट कैन चेंज इन द पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विस हैं जो लोगों को अवेलेबल हैं, और जो है ना न्यू इंडस्ट्री जो है ना यू कैन इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मुहैया करेगा, एग्रीकल्चर को डेवलप करेगा, और जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फैलाएगा, जो है ना आगे बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा. एक्सक्यूज मी सर ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती है? जो भी बेटा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो गया, बिजली से रिलेटेड हो गया, गैस से रिलेटेड हो गया, जो भी चीज़ें पब्लिक यूटिलिटी जो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वट एवर दे आर, ठीक है, बिजली की सप्लाई हो गया, गैस की सप्लाई हो गया, और भी होना, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, जो भी पब्लिक उसको जिस चीज़ को पब्लिक यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, जो चीज़ भी है, ठीक है. अच्छा, the stable government can develop means of communication and transport for expansion of the size of the market. यानी जो गवर्नमेंट स्टेबल होगा, यानी हमने उसमें पढ़ा था, याद है आपको, इकोनॉमिक फैक्टर में एक अहम फैक्टर जो है ना कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना. तो अगर गवर्नमेंट जो होगा अगर स्टेबल होगा, ही विल डेवलप दी ट्रांसपोर्ट एंड अदर जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, उनको वो डेवलप करेगा. अगर ये डेवलप होगा, साइज ऑफ द मार्केट जो है ना वो डेवलप होंगे, यानी द पीपल द इंडस्ट्रियलिस्ट दे विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे विल टेक इट टू द मार्केट.
and they will sell the goods, लोग उसमें engage होंगे, employed होंगे, ठीक है। तो कहता है अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो, it will develop and expand the communication and transport system. It can also adopt improved monetary and fiscal policy for accelerating the economic growth. यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको पढ़ कर आए हैं, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज होना चाहिए, वो जो स्टेबल हो, यानी हर वक्त चेंज नहीं होता हो। और ये उस हुकूमत की बस की बात है जो स्टेबल भी हो और स्ट्रांग भी हो, तो ठीक है, इट कैन अप्रूव द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए। But the political instability is not promoting capital formation to the desired extent. लेकिन political instability जो underdeveloped country में है, it doesn't permit for capital formation जो एक अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए होना चाहिए। हमने उसमें पढ़कर आया था कि आपका जो है ना नेचुरल उसमें ही क्या नाम है वो कौन से इकोनॉमिक रिसोर्स में, ठीक है ना, कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, और जो है ना अंडर डेवलप कंट्रीज में सेविंग रेट क्या है और उसका क्या पोटेंशियल होना चाहिए, शायद आपको याद आते होंगे, ठीक है ना। तो कहता है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ये कैपिटल फॉर्मेशन को डिजायर लेवल पर प्रमोट नहीं कर सकते। The changes of government or the imposition of martial law, etc., जो are the big hurdle in the way of economic development. चाहे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा हो या मार्शल लॉ आ रहा हो, so these things are hurdles, these are the obstacles in the way of economic development. सुन रहे हो आवाज? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, administrative factors. The administrative factors has an important bearing on economic progress of a country. If the administrator is efficient, honest, and strong, it can give a big push to economic development. इस सब सारे खबरदार हैं, चूँकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर जो है ना, जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेसी, उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो इफ़िशिएंट है, इफ़िशिएंट का मकसद है अपने काम को समझता है, इफ़िशिएंट मीन काम को समझता है, ठीक है, और वो एट द सेम टाइम ही इज़ हॉनेस्ट आल्सो, और स्ट्रांग भी है, ठीक है ना, वो सिफारिश नहीं मानता है, चीज़ें जो है ना गलत काम करना वो नहीं चाहता है। इट कैन गिव ए बिग पुश टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इस वजह से आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते रहेंगे। चूँकि इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज द एडमिनिस्ट्रेटर इज जनरली वीक, इनएफिशिएंट एंड करप्ट। आपको पता है कि जो है ना अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो या कमज़ोर होता है, इनएफिशिएंट होता है, ऑनेस्ट नहीं होता है, करप्ट होता है, पॉलिटिकल जो है ना वो जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं उनके हाथों में खेलता रहता है। द वीक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म its duties and thus has retarded the economic growth. ये कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना has failed to perform its duties and thus has retarded यानी economic growth को कम करता है। समझ गया? ये जो था these were the क्या नाम है, social factors, political factors and administrative factors, how they play a role in the economic development of the country, या economic development के लिए उनका क्या role है। अच्छा, now we will discuss another important factor या important requisite या important जो है ना वो technology and economic development. So first we must know what is technology. Technology means the body of knowledge and techniques which can be used to combine economic resources
for the production of goods and services. यानी मकसद ये है कि if you have knowledge and techniques, and if you are using those knowledge and techniques with your available economic resources for the production of goods and services in the country, it is called technology, right? Technological progress. ये तो था technology, आपको पता चला कि what is technology. Now technological progress. Technological progress is the increased application of new scientific knowledge for the development of new products and finding new ways of producing things. In technological progress जो है ना, it is the increased application, यानी आप you are using the scientific knowledge को use कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं या न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग न्यू वेज ऑफ थिंग्स और यू आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग द अवेलेबल न्यू साइंटिफिक नॉलेज, which means you are making technological progress. Technological progress is considered now a prime mover of economic development. In technological progress, it is very important to take towards the development. Capital alone cannot bring development. ये कह रहे हैं कि capital आपके पास हो, ठीक है, capital is an important thing, ठीक है ना? It is important for the economic development, but alone it cannot bring development. It is technical progress or increased application of new scientific knowledge along with the capital which has brought a rapid economic development in all sectors of the economy. यानी कहता है कि it is the technical knowledge, it is due to the technical knowledge or increased application of the new scientific knowledge साथ साथ capital के which has brought a rapid economic development in all sector of the economy. जो भी sector है, whether it's a primary sector जिसमें agriculture आते हैं, fisheries आते हैं, इसमें जो है ना और जो primary sector में जो भी आते हैं, दूसरा जो है ना वो secondary sector जिसमें industrial sector आता है, manufacturing आता है, tertiary sector है जिसमें जो है ना तो आपके सर्विसेज आते हैं, जो भी सेक्टर रहते हैं, ठीक है ना, कॉमर्स एंड ट्रेड आते हैं, तो इट इज डेवलपमेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज सेक्टर्स. अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द एग्जिस्टिंग लेवल इन यूडीसी. इन यूडीसी में टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है? यानी आपने टेक्नोलॉजिकल किसको कहते हैं पढ़ लिया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किसको कहते हैं, यू अंडरस्टैंड इट. नाउ व्हाट इज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन द यूडीसीज. In less developed countries, including Pakistan, the techniques of production are mostly backward and labor-intensive in various sectors of economy. कहता है कि लेस डेवलप्ड कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, the techniques of production are mostly backward and labor intensive. Labor intensive क्या मकसद है? मतलब लेबर बहुत ज्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी कम है. हाँ, उसके अपोजिट क्या होता है? सारे काम होते हैं वो लेबर करते हैं. नहीं वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट क्या होता है? एक लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. बेटा खुश रहो. एक लेबर इंटेंसिव होता है, एक कैपिटल इंटेंसिव होता है. वो आप दोनों आपसे कह रहे हैं कि भाई जिसमें या ज्यादा लेबर इन्वॉल्व हो या सारा काम लेबर कर सकते हो, ठीक है ना, यानी उस पर कैपिटल लेबर रेशो को देखते हैं सर हम. एंड कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट. यानी इनका कहता है कि लेस डेवलप कंट्री में जो है ना ये मोस्टली बैकवर्ड हैं और ये सारे चीज़ों में ना लेबर इंटेंसिव है, नॉट कैपिटल इंटेंसिव इन ऑल सेक्टर, वेदर इट्स एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज सेक्टर है, जो भी है. ए बिगिनिंग हैज़ बीन मेड इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज
including Pakistan, to introduce new intermediate technology in all sectors of agriculture, industry, transport, telecommunication, banking, etc. etc. ठीक है ना, कहता है ठीक है पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हो चुका है इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी तमाम उस सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, कल्टिवेशन में. विद द ग्रेजुअल एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी the traditional areas of production become absolutely. ये intermediate technology क्या होता है? सर मतलब कोई एक मशीन है लेकिन उसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है. बस बेटा intermediate technology means simple and practical tools, basic machines and engineering system that can be purchased or constructed from resources that are available locally to improve their well-being. समझ लिया बेटा? Yes, sir. Intermediate technology means simple and practical use होता है, ठीक है? वो basic machine होता है या engineering system है that आया उसको या खरीदा जा सकता है लोकल पीपल या उसको बनाते हैं किससे फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज एंड दैट इज अवेलेबल लोकली टू इम्प्रूव देयर वेल. ठीक है ना, इन चीज़ों से है. ट्रेडिशनल एरिया ऑफ द प्रोडक्शन आर बिकमिंग एब्सोल्यूट. लाइक ये ट्रेडिशनल जो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड चूँकि ये कम होते जा रहे हैं, एब्सोल्यूटिक में आउट ऑफ द यूज़ हो रहे हैं. इट इज़ पुटिंग आल्सो आउट ऑफ द वर्क the old scale training education of the people and contributing to so-called structural unemployment. कहते हैं ठीक है ये चीज़ें education of the people contributing कर रहे हैं, at the same time it creating structural unemployment. ये structural unemployment क्या होता है? सर जब किसी काम के लिए जो स्किल्स चाहिए होते किसी बंदे के पास वो ना हो. एग्जैक्टली बेटा यही होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना कि वो दो किस्म का होता है ना. एक जो होता है ना कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक जो होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है बेटा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है बेटा कि भाई एक आदमी लेबर इज विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट, इनवॉलंटरी बट कैन नॉट फाइंड ए जॉब. और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड व्हेन लेबर फोर्स नॉट टू टेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट एंटिसिपेटिंग दैट बेटर जॉब कैन बी प्रोड्यूस. यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी. फिर ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना फिर जाकर एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट अब समझना क्या है? साइकिल के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड. Better, exactly. It is unemployment created by irregular declines in all economic activity of the country. यानी किसी मुल्क में कभी जो है ना आपको वो बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा है ना, कभी ऊपर जाता है, कभी टॉप पे पहुंच जाता है, कभी पीक पे पहुंच जाता है. ठीक है ना, उनकी वजह से जो अप्स एंड डाउन आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, डेट का साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा. सीजनल जो है ना ये थोड़ा सा रेगुलर है. ठीक है ना, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ये सीजन पे बेस पर है. मसला एक आदमी सपोज ही इज वर्किंग इन द कोल्ड स्टोरेजेस. ठीक है ना, उसको पता है कि ये गर्मियों में सर्दियों में ये बंद हो जाएंगे. ठीक है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट. या एक आदमी जो है ना वो शुगर मिल में काम करता है, उसको पता है कि क्रशिंग का सीजन खत्म होगा, ही विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल होता है. और दूसरा बात जो है ना बेटा वो क्या नाम एम्प्लॉयमेंट क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो दूसरा क्या नाम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है सर. हाँ वो क्या होता है? फ्रिक्शनल क्या होता है बेटा? सर जब कुछ ग्रेजुएट्स फारे होते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, या कोई बंदा जॉब छोड़े और दूसरी जॉब की तलाश में वो कुछ दिनों के लिए अनएम्प्लॉयड होता है. तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल मींस दैट पर लेबर मार्केट चूंकि परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन राइट बेटा परफेक्शन नहीं है, इसलिए वो कहता है कि उसमें जो है ना कि वो उसको इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, इसलिए वो जॉब देने के लिए टाइम लेता है जिस तरह आप कह रहे हैं. ठीक है बेटा, इसलिए उसमें कुछ दिन के लिए वो बेरोजगार रह जाते हैं. नाउ वी कम टू द एक्चुअली स्ट्रक्चरल हमने क्या कहा था बेटा? सर जब किसी बंदे के पास वो स्पेसिफिक स्किल्स ना हो जो रिक्वायर होते हैं जॉब के लिए. if you don't have the specific skill. ठीक है ना, मसलन फॉर एग्जांपल एक आदमी काम कर रहे हैं,
उसी जगह में जो है ना कंप्यूटर बेस्ड काम स्टार्ट करना चाहते हैं और शुरू हो गया, ठीक है ना, उसके बाद कंप्यूटर का स्किल नहीं है। सपोज पर्सन ही इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर, ठीक है ना, वो पहले हाथों से काम करता था, बुलेट चलाता था, आप उसमें ट्रैक्टर और मशीन इस्तेमाल करें, ट्रैक्टर इस्तेमाल करें, लेकिन वो ड्राइवर नहीं है। इसलिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो स्किल नीड है वो अगर उसके पास नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये कहता है कि चूंकि असल चीज हमारे चूंकि अंडर कंट्रीज में मशीनरी यूज होना इस्तेमाल स्टार्ट हो चुके हैं, चूंकि उनके पास ये भी मसला करता है कि भाई उनको अनस्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता है। समझ लिया? जी सर। आर यू यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. Now, adoption of technology. At present, there is a huge gap between the technology of developed countries and underdeveloped countries. The developing countries cannot adopt the sophisticated techniques of production of the developed countries because the technology used by an advanced countries is very costly. कहता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में चूंकि जो डेवलप्ड कंट्री जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं they are more sophisticated as compared to underdeveloped countries, so that sophisticated technology is very costly for the underdeveloped countries. Now बेटा we will discuss technology का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, in a simple word क्या इम्पोर्टेंट है on economic development में। Role of technology. The impact of the technology on economic development of a country is discussed below. Number 1, increase output. Technological change helps in getting more output from the same resources or the same output from less resources. वो कहता है टेक्नोलॉजिकल का फायदा ये है कि आया या तो उस सेम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट ले रहे हो या सेम आउटपुट जो है ना वो कम ही रिसोर्सेज से ले रहे हो, ठीक है। न्यू वेज एंड न्यू प्रोडक्ट्स। सेकंड, the use of improved technology results in finding new ways of making things and development of new products. यानी टेक्नोलॉजी का दूसरा फायदा है कि न्यू वेज एंड न्यू प्रोडक्ट्स। द यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ मेकिंग, नया चीज़ें बनाना और नया चीज़ों नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, आगे ले जाना, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बारे हम डिस्कस कराए हैं ऊपर। थर्ड, इंक्रीज इन रियल इनकम। With the technological change, there has taken place much increase in productivity in all sectors of the economy, which has led to the increase in the income of the developed as well as underdeveloped countries. कहता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से both the productivity, whether it is underdeveloped countries, whether it is a developed countries, right, whether it is any sector, it is related to the agriculture, industry, manufacturing, services, उसकी productivity increase हो चुका है। If the productivity has increased, the income of the people has also increased. 4, breaking the difference between industries. The introduction of new techniques of production and management is breaking down the difference between small and large units. The small units of production are finding difficult to compete with the big industries units. They are also adopting the new ways of production for their stay in the market. क्या मतलब है बेटा इसका? क्या मकसद है इसका? मतलब कि छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है वो बड़े के साथ compete करने के लिए न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करती है। हाँ,
ठीक है, मतलब ठीक है। नई मशीन्स वगैरह इंस्टॉल कर करते हैं, लेती है ताकि वो बिल्कुल मार्केट में compete मार्केट कर में सके। compete कर सके। पहले ज़माने में ये होता ना कि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता था, ठीक है ना। अब चूंकि आपकी बात है बेटा कि मार्केट में जिंदा रहने के लिए, टू स्टे इन द मार्केट, जो है ना, वो भी नए तरीके, नए मेथड, नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टू कम्पीट विद द लार्ज इंडस्ट्रीज। सो इसकी वजह से कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से दे आर आल्सो अडॉप्टिंग द न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, और उनका जो डिफरेंस जो था स्मॉल इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंटरप्राइजेज, लार्ज इंटरप्राइजेज, वो फर्क कम होता जा रहा है। ठीक है बेटा आपकी बात। अच्छा, फिफ्थ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। विद द टेक्नोलॉजिकल चेंज, the goods are mostly produced on large scale, and these have also been standardized under different levels. चूँकि टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद चीज़ें जो है ना लार्ज स्केल पे पैदा किए जाते हैं, और फिर उन चीज़ों को लेबल लगाकर स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन तो आप समझते हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, यानी उन चीज़ों की स्टैंडर्डाइजेशन सर कर, हाँ बताएं क्या करो, बोले बोले कुछ कह रहे हो? बोलो। सर प्लीज एक्सप्लेन करें किस तरह स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी मतलब क्वालिटी इंप्रूव होती इन है। उनके चीजों में यूनिफॉर्मिटी होना, साइज में, शक्ल वगैरह, एग्जैक्टली मटेरियल जो अच्छा लगते हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सही। साइज में, हर एक चीज़ में, फलान में जो है ना, वो जो भी हो उसी में वो हो जाते हैं। ठीक है ना, वो हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कहते हैं उनका साइज हो गया, छोटा बड़ा, जो चीज़ जो है ना, हर एक का क्वालिटी वाइज, ठीक है ना, वो होते हैं। अच्छा, 6, इंक्रीज इन हाउस होल्ड प्रोडक्टिविटी। Technological innovation have increased the production of household appliances like fridge, dishwashers, grinders, etc. The use of these household appliances reduce the time in preparing things for daily use. कहते हैं इंक्रीज इन हाउस होल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन आया है, इसने हाउस होल्ड की जो अप्लायंसेस है, मसलन फ्रिज हो गया, डिश वॉशर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इनको जो लोग घरों में इस्तेमाल करते थे, जो है ना, ये चीज़ें बनाने के लिए उनके टाइम को इसने कम किया। मसलन ग्राइंडर आ गया, जल्दी जल्दी आप चीज़ को पीसते हैं, बनाते हैं, चीज़ बना लिया, फ्रिज में रख दिया, ख़त्म हो गया। डिश वॉशर आपके पास है, बर्तन उसमें डाल दिया, डिश वॉशिंग कर दिया। इसलिए कहता है ये आपके टाइम को रिड्यूस कर दिया। समझ लिया? हाँ, यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The introduction of the new technology has given rise to the factory system in the cities. यानी टेक्नोलॉजी की वजह से सिटीज़ में जो है ना मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई। एज ए रिज़ल्ट, यानी इस इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने के रिज़ल्ट में अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज, लोगों का अर्बनाइजेशन जो है ना वो इंक्रीज हो गया। द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज हैज़ इंक्रीज्ड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यानी लोग वो फैक्ट्री की वजह से, जॉब की वजह से, वो जो है ना वो अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो ठीक है, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं कि मल्टी प्रॉब्लम, वहाँ तालीम से रिलेटेड स्कूल जो है ना वो कम पड़ गए, उसके दाखिले के लिए हेल्थ से रिलेटेड अस्पताल जो है ना, हाउसिंग का मसला हो गया। ठीक है ना, ये वहाँ जो है ना, दैट विल क्रिएट दीज प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल